Okay, hello students. So welcome to the last part of this chapter, that is we are going to study benzene and its compound in detail for the chapter 13 hydrocarbons. Okay, chal. So for benzene, let me tell you one thing, that benzene was first isolated by Faraday in somewhere around about 1825, guys. But due to its unique properties and unusual stability, it took several years to assign its structure. So finally, in 1865, Dr. August Kekul assigned the structure of the benzene as something like this: a cyclohexane ring, and there were alternate double bonds to it. So this is also known as Kekul's structure of benzene. Okay, and then it was seen that this benzene was can be written as something like this. So the alternate bonds can be done over here also, right? Now in this we need to tell you very carefully, guys, that the benzene skeletal structure is written as C6H6, right? And suppose if you substitute your benzene over here with one of the any part of the compound, with any alkyl group or halogen or nitro group, anything, then the benzene will be written as C6H5. Okay, the H will be getting substituted. That is very important point to remember for the chemical properties. Okay, guys, chali. Then this benzene is also known as aromatic compound, guys. क्या बोलते हैं बेंजीन को? इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड. सो बेंजीन के अलावा देर आर मेनी कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक इन नेचर, राइट? सो हाउ टू टेल दैट देर what which compounds are aromatic and which are non-aromatic? For there we have to first see that what is this aromaticity. The property of being aromatic compound is aromaticity. तो ये aromatic compound के ऐसे तो क्या characters हो सकते हैं जिससे हम बता सकें कि ये compound aromatic है कि नहीं? So these are the following characters. Okay, the first character being that there should be conjugated double bond. Conjugated double bond. Now conjugated का मतलब और कुछ नहीं होता है, guys. It is alternate. Okay, there should be alternate double bonds. Then there should be unusual stability in the compound. Okay, compound unusually stable होना चाहिए. That is why unusual stability. The third important point, that the compound should be cyclic and flat. फ्लैट मतलब यहाँ पे फ्लैट का मतलब होता है प्लेनर कंपाउंड. इट शुड बी इन प्लेन, इट शुड नॉट बी इन आउट ऑफ प्लेन, और इट शुड नॉट बी अ प्लकर्ड कंपाउंड, राइट? एंड द लास्ट वन, दैट द मॉलिक्यूल और द कंपाउंड शुड अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अगर कोई कंपाउंड ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, देन दैट कंपाउंड इज नोन टू बी एरोमेटिक. ओके, apart from this, there was one another rule which was being generalized, which is known as Huckel's rule. क्या बोलते हैं इसको? Huckel's rule. We see this Huckel's rule, that these are something, this rule or something is nothing but necessary conditions for a molecule to be aromatic. So these are necessary conditions for molecule to be aromatic in nature. चलिए मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ. पहली कंडीशन उसने यही रखी, दैट द रिंग लाइक स्ट्रक्चर शुड बी देयर, एंड दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर विथ कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स. तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, है ना? ओके, नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले नहीं पढ़ा था. इस रूल के मुताबिक कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा, उसके पास द कंपाउंड शुड possess 4n plus 2 pi electrons, guys. क्या होना चाहिए? 4n plus 2 pi electrons. अब मुझे पूछेगा सर ये n क्या है यहाँ पे? I'll say n is nothing but the number of rings. बहुत सारे रिंग्स हो सकते हैं ना, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, n नंबर ऑफ रिंग्स कैन बी देयर. तो उसके पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उन रिंग्स में,
ओके, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए मैं आपको बेंजीन की एरोमेटिसिटी इससे चेक करके बताता हूँ। तो बेंजीन का कंपाउंड कैसा है, समथिंग लाइक दिस। चलिए सबसे पहली कंडीशन, क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है? तो हाँ भाई ये साइक्लिक है। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है? हाँ भाई एक ही प्लेन में है। क्या इसके पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं? तो यस, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स हैं इसके पास, राइट। अब क्या चेक करना है, दैट 4n + 2 पाई वाला रूल। ओके, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n मतलब नंबर ऑफ रिंग्स, तो देयर फॉर 4 × 1 + 2 मतलब क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 3 डबल बॉन्ड्स का होना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3 डबल बॉन्ड्स। सो आर देयर 3 डबल बॉन्ड्स? 1 2 3, yes they are there. So therefore benzene is aromatic. Getting it guys? Clear? चलिए आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पे रख के जाता हूँ, विच यू डिस्कस विथ योर टीचर इन द क्लास। ओके, सो यू नीड टू चेक वेदर द कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट। ओके, चलिए पहला कंपाउंड कुछ ऐसा है और दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा है। वेरी सिंपल गाइज, इफ यू विल फॉलो द रूल एंड द हकल रूल यू विल बी एबल टू गेट इट। ओके, चलिए सो अब हम बात करते हैं अपने मेजर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की, विच इज़ बेंजीन। एंड यू ऑल नो द ड्रिल, वी ऑल डू द preparation methods and the chemical properties. So let us begin with methods of preparation for benzene. Okay, so pehla method of preparation of benzene, that is you have already seen in the video for alkynes, that is from ethyne, or it is also known as acetylene, right guys, which the process is the cyclic polymerization. If you remember, there were 3 moles of ethyne which were when passed through red hot iron tube, remember, and there were certain temperature also, 873 का पर्टिकुलर टेम्परेचर था। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के कारण बेंजीन। सो आपको इथाइन से यहाँ पे क्या मिल गया, बेंजीन। ओके, right, so this is the first method of preparation. There was second method of preparation also, which is the method you already know, that is decarboxylation method. Yes, you guessed it right, soda lime decarboxylation method, which we have studied in alkanes. So we take benzene, actually substituted benzene with COONA, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बोला जाता है गाइस, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। कई लोग इसको सोडियम बेंजोएट भी बोलते हैं। व्हाट इट इज नोन एज सोडियम बेंजोएट। अगर इसमें सोडा लाइम वाज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO। सो व्हाट वाज हैपनिंग ओवर हियर, Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, राइट। एंड ये जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ जैसे जो सब्स्टिट्यूट हो गया था वो फिर से वहाँ पे चला जाएगा। सो यू विल गेट बैक योर बेंजीन। ओके, सो सोडियम बेंजोएट से बेंजीन मिलता है, करेक्ट। दिस इज द सेकेंड प्रिपरेशन मेथड। एंड द थर्ड प्रिपरेशन मेथड, which is important from 12th standard point of view, is by reduction of phenol. By reduction of phenol. So let me tell you how. बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप अटैच होता है उसको फिनॉल बोला जाता है, राइट गाइस। अब इस फिनॉल के अंदर सपोज आप जिंक डस्ट डाल दो और हीट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा, विच इज़ सेलेनो, और ये जो H है यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपको आपका बेंजीन मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ बेंजीन इज़ बीइंग produced by 3 different methods. Okay,
चलिए, so now the last segment, which is the chemical properties. So let me just write it down first. Chemical properties of benzene. करेक्ट. अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये बेंजीन है, बेंजीन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं. डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो एक्स्ट्रा ही हैं इधर, राइट. नाउ व्हाट डू यू थिंक दैट ये बेंजीन के ऊपर क्या इलेक्ट्रोफाइल्स इजीली अटैक कर पाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स इजीली अटैक कर पाएंगे? Which one will be able to attack more easily on benzene? Of course, you guessed it right. Because nucleophiles already have negatively charged species, वो इन extra electrons को क्यों यहाँ से लेंगे? Why it will attack? They cannot attack benzene easily. It is the positively charged species which is the electrophile which can attack on benzene easily. And that is why chemical property or chemical reactions of benzene come under one name, which are known as electrophilic substitution reactions. What are they known as? Electrophilic substitution reactions, which are also known as ESR. क्या बोलते हैं इसको? ESR. Okay, ठीक है. For you all in 11th standard, there are 5 types of electrophilic substitution reactions what you need to study. The first one is nitration, जहाँ पे NO2 ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर. The second one is sulfonation, जहाँ पे SO3H ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर. The third one is halogenation, जहाँ पे कोई भी हेलोजन लगता है बेंजीन के ऊपर. The fourth one is Friedel and Crafts alkylation. Friedel and Crafts alkylation, जहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर. And the last one जो इसी का भाई है, which is Friedel and Crafts acylation, जहाँ पे कोई असाइल ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर. सो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू. नाइट्रेशन मतलब जब NO2 ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर, जब SO3H ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर तो सल्फोनेशन, जब कोई भी हेलोजन लगता है X तो हेलोजनेशन, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप लगता है तो अल्काइलेशन, एंड जब C डबल बॉन्ड O यहाँ पे CH3 लगता है तो दिस आर acylation. Okay, चलिए, let us study all of them in detail. The first one, nitration. मैं आपको reactions लिखना बताऊंगा, so please pay attention. बेंजीन के ऊपर जब हम यहाँ पे concentrated HNO3 और concentrated H2SO4 डाल देते हैं तो इस बेंजीन में एक H निकल जाता है. सपोज यहाँ से एक H निकल गया, उसके ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाता है NO2 ग्रुप, और जो H निकल गया वो H2O यहाँ पे बना के बाहर निकलता है. सो बेंजीन से मिला नाइट्रोबेंजीन. ओके, ठीक है. द सेकेंड वन, अब हम सल्फोनेशन रिएक्शन लिखते हैं. सो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होगा? इन सल्फोनेशन रिएक्शन सपोज यू हैव बेंजीन रिंग अगेन, उसके अंदर हम ऐड करते हैं ओलियम. नाउ ओलियम इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3, एंड व्हेन यू हीट इट, आपके इस बेंजीन में से फिर से एक H निकल जाएगा. सो ऊपर वाले कार्बन में से सपोज X निकल गया, और उसके ऊपर क्या अटैच हो जाएगा? SO3H ग्रुप, और यहाँ पे फिर से आपको पानी का मॉलिक्यूल बाहर मिलेगा. इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या बोला जाता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो ये हो गया सल्फोनेशन. द नेक्स्ट वन, यहाँ पे द थर्ड रिएक्शन इज हेलोजनेशन, राइट.
सो हेलोजनेशन रिएक्शन, ऑफ कोर्स हम क्या लेंगे यहाँ पे, देर इज़ बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के अंदर कोई हेलोजन डाल दिया, लेट अस से ब्रोमीन डाल दिया। अब उसको करने के लिए आपको एक रिएजेंट चाहिए होगा, जैसे लेट से FeBr3। FeBr3 reagent over here act as Lewis acid। आई होप सबको लुइस एसिड का मतलब पता हो, है ना। एंड आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब H निकल के यहाँ पे Br, और दूसरा ये जो ब्रोमीन यहाँ से बचा वो HBr यहाँ पे बाहर निकाल देगा। सो आपको बेंजीन से यहाँ पे मिल गया ब्रोमोबेंजीन, राइट। ओके, so this was the third reaction. Then the fourth one, Friedel and Crafts alkylation। अब उसको FNC reaction भी बोला जाता है guys। So FNC alkylation, let us see what happens over here. In this reaction there is benzene ring, उस benzene ring के अंदर you add alkyl halide, let's say CH3Cl, और इसके अंदर आपको एक रिएजेंट ऐड करना है विच इज़ एनहाइड्रस AlCl3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट गाइस। इस रिएजेंट का भी काम FeBr3 जैसा ही है, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज लुइस एसिड, राइट। और ये एनहाइड्रस AlCl3 के कारण ये बेंजीन में एक H के बदले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH3, एंड वो जो H जो है वो Cl को लेके बाहर निकल जाएगा HCl। सो बेंजीन के बाद आपको यहाँ पे क्या मिला, टोल्यूइन, राइट। एंड द लास्ट रिएक्शन व्हाट यू हैव ओवर हियर, द फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज फ्रिडल एंड क्राफ्ट असाइलेशन। तो एक असाइल ग्रुप ऐड होगा यहाँ पे, लेट अस सी वो कैसे होता है। सो यू हैव बेंजीन रिंग, अब CH3Cl के बदले यहाँ पे ऐड होगा CH3C डबल बॉन्ड OCl, राइट। एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, है ना। सो बेंजीन के अंदर एसिटाइल क्लोराइड अगर ऐड किया, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एंड दिस एक्ट्स एज लुइस एसिड, तो बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। जो H यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ वो इस Cl को लेके बाहर निकल जाएगा विथ HCl, जैसे यहाँ वाला H भी इस Cl को बाहर निकल के HCl बना दिया, राइट। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफेनॉन। व्हाट इज दिस कंपाउंड नोन एज, एसिटोफेनॉन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइस, ओके। सो याद रख लेना। You also have mechanisms for this reaction, but that we'll do in the next video, okay?